Good morning students, welcome to Bharti online classes. In previous lecture we studied about refraction through prism. Now in today's lecture we will study another topic, dispersion of light and scattering of light. So as earlier we have discussed that whenever a ray of light interact with prism, then two phenomena can occur. One is refraction of light, which we have studied in previous lecture, and second one is dispersion of light, which we will discuss today. So our today's topic is dispersion of light. As we know that the white color of light is made by 7 colors of light, and those 7 colors are Vibgyor, in which V is for violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. If these 7 colors are mixed in same amount, then white color is formed. So when we split a white color, then it will come into 7 colors of component, which are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So let us start dispersion of light. We have studied whenever a ray of light interact with prism, then two phenomena can occur. First was refraction of light and second was dispersion of light. We are discussing today the dispersion of light. When a white ray of light interacts with prism, then this is the incident ray, direction of incident ray, but due to dispersion it will split into its 7 color of components, and this phenomena is known as dispersion of light. Clear? What is dispersion of light? I am defining again. When a white ray of light falls on a prism, then it splits into 7 colors of component. This phenomena is known as dispersion of light. So those 7 colors will be violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. Okay, this is incident ray. Okay, and this was the direction of incident ray, you can see here. So how much deviation is produced here, we can see. For the deviation of red color is minimum and deviation for violet color is maximum. Okay, in previous lecture we have find the value of refractive index of prism, in which special case we found an equation which was del equal to A into n21 minus 1. What is A? A was the angle of prism, which is fixed for a prism. That is the angle between two refracting surfaces. It is known as angle A, angle of prism. What is n21? N21 was refractive index of second medium with respect to first medium. What was there? Del was angle of deviation, the angle between incident ray and emergent ray. So from this diagram we can see when a white ray of light interact with prism, then it is split into its 7 colors of component from which it has been made. So we will see here, we are seeing here for red color the deviation is minimum and for violet color the deviation is maximum. One more thing here have to be noted, that the wavelength order will be in this way. So we can say the wavelength of red color is maximum and the wavelength of violet color is minimum. So this was about a very simple topic, dispersion of light. Splitting of a white light when interacting with a prism into its 7 colors of component is called dispersion of light, and those 7 colors are in this order. The pattern of these color obtained on a screen is known as spectrum. ये जो 7 कलर्स हमें स्क्रीन पे मिलते हैं, इन्हीं 7 कलर्स के पैटर्न को स्क्रीन पे जो हमें ऑब्टेन हुए हम स्पेक्ट्रम कहते हैं. ठीक है, तो यहां से मैंने कुछ छोटी मोटी बातें आपको और बताई. अब बात करते हैं इसी टॉपिक से जुड़े हुए सब टॉपिक की, जिसका नाम है एंगुलर डिस्पर्जन. As the name suggests, what is angular dispersion? Angular dispersion means the angular separation between two extreme color of spectrum is known as angular separation. Sorry.
denoted by theta. That means the angle between two extreme colors of the spectrum. What are the extreme colors? The top one and the bottom one. That means the angular separation between red color and violet color is known as angular dispersion. So what will be the formula for it? The formula will be theta equals to, you know that the angle between from this point to this point is del V, and from this point to this point is del R. We have to find the value of from this point red to violet. What we will do? Del V minus del R equal to angle between R and V, red color and violet color. So we can write del V minus del R will be the formula for angular dispersion. Now here we can write another equation with the help of this equation. So let, we will name this equation 1. Let del V equal to A and V minus 1 and del R equal to A and R minus 1. What is NV? The refractive index for violet color. What is NR? The refractive index for red color. Why I am not changing A? Because A is angle of prism which is fixed for a prism. So I have not changed the value of A. Now if you will put the value of del V and del R in equation 1, putting value of del V and del R in equation first, what we will get? We will get theta equals to, yes, for del V we can write A and V minus 1. A and V minus 1 minus, for del R we can write A and R minus 1, A and R minus 1. Now by opening the brackets and multiplying A inside bracket, A and B minus A and R minus minus plus A. With A and minus A will cancel out. In the last we will get A and B minus A and R, and in the final we will get A is common and B minus and R. Okay, so this is the final formula, equation number 2 for angular dispersion. Now the second subtopic of this topic is dispersive power. What is dispersive power? We will see. Dispersive power denoted by omega. So if we physically explain this topic, then this is ability to cause dispersion is called dispersive power. That means the ability of a prism to cause dispersion. किसी भी prism की dispersion यानी कि white ray of light को 7 components में split करने की जो ability है, property है, that is known as dispersive power. But mathematically if you want to define, then it is the ratio of angular dispersion to the mean deviation. What is mean deviation? That is the color which is having deviation in the middle of this spectrum. So it has been observed experimentally, the mean deviation is taken for yellow color. So for this case, what will be the formula for dispersive power? We will see here. Dispersive power, omega is equals to theta upon del V. Del V is mean deviation. What is theta? Theta is angular dispersion. So writing the value of theta and del V, but we will get for the theta we will write A n V minus n R divided by, for del V from this equation we will write the value of del V. For del V it will be A, because A is fixed for a prism, it is an angle of prism, multiplied by refractive index of yellow color ny minus 1. From A is cancelled, then in the last dispersive power will be equal to nv minus nr upon ny minus 1. This is the formula for dispersive power. So this was a very small topic, and that is dispersion of light, then angular dispersion, and in the last dispersive power. Now another topic is scattering of light. What do you mean by scattering? By the word it has been described, scattering means किसी भी चीज का फैलना.
किसी भी चीज का, जैसे होली में होली रंग उड़ाते हैं तो रंग को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो चारों तरफ फैल जाता है, हम कहते हैं कलर्स आर स्कैटर्ड एवरीवेयर इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो व्हाट इज स्कैटरिंग? फैलना, फैलने को, बिखेरने को हम कहते हैं स्कैटरिंग। तो अब इसको हम रे ऑप्टिक्स के क्रम में समझते हैं। व्हाट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट? लेट अस सी। सो आवर टॉपिक इज scattering of light. As we know that on our earth the light is coming from sun. Sun is source of light. So when light coming from sun passes through atmosphere, then in the atmosphere there are so many molecules, and there are some molecules having size less than the wavelength of light. So when sunlight passes through atmosphere, it interacts with the molecules of atmosphere which have size less than the wavelength of light. ठीक है, they are absorbed by that molecules and then re-emitted in each and every possible direction. This phenomena is known as scattering of light. दोबारा से समझिए, सनलाइट जब एटमॉस्फेयर के छोटे छोटे मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करती है, और वो छोटे मॉलिक्यूल्स कितने छोटे होने चाहिए? उन मॉलिक्यूल्स का साइज लाइट की वेवलेंथ से कम होना चाहिए। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ से कम है, जब वो इंटरेक्ट करते हैं सनलाइट के साथ तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करके और फिर उसके बाद चारों पॉसिबल डायरेक्शंस में उसको दोबारा री इमिट करते हैं। दिस फिनोमिना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यहां पर कंडीशन जरूरी है कि मॉलिक्यूल्स का साइज लाइट की वेवलेंथ से कम होना चाहिए। तो मैं दोबारा एक डेफिनेशन बता रहा हूं। व्हेन सनलाइट passes through atmosphere, then it interacts with the molecules of atmosphere having size less than the wavelength of light. Then the light is re-emitted in each and every possible direction. This phenomena is known as scattering of light. Then again a scientist named Rayleigh gave a law for scattering. Rayleigh law of scattering. What does this law says? This law says that the intensity of scattered light, the intensity of scattered light is inversely proportional to the 1/4 power of wavelength of light. That means let us assume if the intensity of scattered light, scatter होने के बाद जो लाइट री-इमिट हो रही है each and possible direction में, उस स्कैटर्ड लाइट की इंटेंसिटी अगर आई है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लाइट की वेवलेंथ के 4th पावर के। यहां से मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चल रही है कि जिस कलर की वेवलेंथ, जिस कलर ऑफ लाइट की वेवलेंथ, जिस लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी, यानी कि वो कम बिखरेगा। जो कम बिखरेगा वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। दोबारा से समझिए, जिस कलर ऑफ लाइट की वेवलेंथ, जिस कलर के लिए वेवलेंथ ज्यादा होगी वो स्कैटर कम करेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो रिजल्ट विल बी डिक्रीज्ड। जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग इंटेंसिटी यानी कि स्कैटरिंग होने की पावर कम होगी। अगर स्कैटरिंग कम होगी इसका मतलब वो कलर कम बिखरेगा, कम फैलेगा। अगर कलर कम फैलेगा, कम बिखरेगा, तो वो कलर ज्यादा दूर तक ट्रेवल करेगा। तो सीधी सी बात है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि वो कम स्कैटर होता है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो ज्यादा स्कैटर होगा, इसका मतलब वो ज्यादा फैलेगा, तो हम कह सकते हैं कि वो कम डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो फ्रॉम here we know that the wavelength order is in this way: red is maximum and for violet is minimum. So from here we can say red color scatter least, क्योंकि इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे कम स्कैटर होगा, सबसे कम बिखरेगा, सबसे कम फैलेगा। इसका मतलब है रेड कलर कैन ट्रेवल more distance compared to other color of spectrum, and violet color scatter most. सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा? violet। इसका मतलब सबसे कम डिस्टेंस violet ट्रेवल कर पाएगा, क्योंकि ये फैल जाएगा तुरंत।
और रेड कलर सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्योंकि ये सबसे कम स्कैटर होता है, सबसे कम फैलता है। तो ये तो बात हुई अपनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग के बारे में। अब स्कैटरिंग के ऊपर कुछ जनरल लाइफ में फिनोमेना बेस्ड हैं, उनकी भी हम बात करेंगे और वो चीजें आपको यहां से समझ आ जाएंगी अगर आपने रेले लॉ समझ लिया है तो चलिए समझते हैं फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग। और नेक्स्ट टॉपिक इज फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग। ये कुछ थियोरेटिकल चीजें हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि दिस फिनोमेना इज बेस्ड ऑन विच प्रोसेस ऑफ ऑप्टिक्स, तो आप बता सकते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या पूछ सकता है एक्सप्लेन सम फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, एकदम थियोरेटिकल है, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो बात कर रहे हैं फिनोमेना बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो चलिए नंबर 1 फर्स्ट फिनोमेना हम देखते हैं, ब्लू अपीयरेंस ऑफ लाइट। सबसे पहला फिनोमेना आसमान नीला क्यों है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो एज वी नो दैट when sunlight will pass through atmosphere it will interact with the molecules having size less than the wavelength of light and will re-emitted in each and every possible direction। तो स्कैटरिंग होती है जो डेफिनेशन में लिखा हुआ है। देखिए सबसे ज्यादा स्कैटरिंग वॉयलेट की होनी चाहिए, लेकिन ये देखा गया वॉयलेट और इंडिगो के मुकाबले ब्लू कलर ज्यादा विजिबल होता है। दैट्स व्हाई व्हेरेवर वी सी इन द स्काई, तो हम फैली हुई चीज देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, किसी एक चीज पे फोकस नहीं करते, चारों तरफ देखते हैं, तो सबसे ज्यादा कौन सा कलर दिखेगा, कौन सा फैलेगा, ब्लू, क्योंकि कंपेयर टू अदर कलर्स ये ज्यादा स्कैटर होता है। देखिए प्रैक्टिकली देखा जाए तो ब्लू कलर स्कैटर हो रहा है, थियोरेटिकली अगर देखा जाए तो वॉयलेट के लिए कहा गया, फिर इंडिगो, फिर ब्लू का नंबर आता है। लेकिन थियोरेटिकली तो हमने वॉयलेट और इंडिगो फिर ब्लू को कहा, लेकिन प्रैक्टिकली जब देखा गया तो ब्लू कलर सबसे ज्यादा स्कैटर हो रहा है, क्योंकि वॉयलेट और इंडिगो के मुकाबले ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो हम कह सकते हैं व्हेन सनलाइट पासेस थ्रू एटमॉस्फेयर इट इंटरेक्ट्स विद द मॉलिक्यूल ऑफ एटमॉस्फेयर हैविंग साइज लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यू टू व्हिच ब्लू कलर इज स्कैटर्ड मोस्ट एंड स्काई अपीयर्स ब्लू। ओके, तो इसका रीजन ये हुआ। दूसरा, अगर इसी में हम एक क्वेश्चन पूछे कि इन मून व्हाई स्काई इज सीन एज ब्लैक, जब मून पे होते हैं तो हमें स्काई ब्लू नहीं दिखाई देती। भाई हम गए तो नहीं है मून पे, लेकिन आपने मूवीज में देखा होगा, हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवीज में, कि जब स्पेस में जाते हैं, मून पे जाते हैं, तो चारों तरफ हमें ब्लैक कलर दिखाई देता है। ठीक है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि मून पे या स्पेस में कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिसकी वजह से स्कैटरिंग पॉसिबल नहीं होती, और जब हम देखते हैं तो हमें ब्लैक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ब्लैक मींस कुछ भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि स्कैटरिंग नहीं हो रही है, क्योंकि लाइट किसी भी मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रही, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेयर। ओके, सेकंड देखते हैं, सेकंड फिनोमेना है रेडिश व्यू ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज। देखिए हम जानते हैं जब सनसेट होता है यानी कि सूरज डूबता है, या सनराइज होता है सूरज उगता है, तो वो हमें रेड कलर का दिखाई देता है, जबकि दिन में हम देखते हैं तो हम उसको देख नहीं पाते, वो व्हाइट या येलो कलर का, येलोइश कलर का हो जाता है। तो सनसेट और सनराइज के टाइम पे हमें सन रेडिश व्यू देता है। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारी अर्थ है और हम सरफेस पे रहते हैं, तो यहां पर ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो ऑब्जर्वर कोई भी चीज इस लाइन के नीचे नहीं देख सकता। देखिए आप जब सामने देखते हैं तो सीधे देख सकते हैं, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे हैं तो आप ग्राउंड फ्लोर पे थोड़ी ना देख सकते हैं क्या हो रहा है। आप फर्स्ट फ्लोर से ऊपर का सब कुछ देख सकते हैं, नीचे नहीं देख सकते। तो ये लाइन जो सरफेस ऑफ अर्थ से हॉरिजॉन्टली जाती है, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन। अ मैन कैन ओनली सी अबव हॉरिजॉन, कैन नॉट सी बिलो हॉरिजॉन। तो जब सन हॉरिजॉन से नीचे चला जाता है, देन दिस केस हम कहते हैं सनसेट हो गया, सनसेट हो गया। हॉरिजॉन से नीचे सन चला जाता है तो उसको कहते हैं सनसेट हो गया। हॉरिजॉन से ऊपर आता है तो हम कहते हैं सनराइज हो गया। जब हॉरिजॉन से ऊपर सन होगा हम तभी उसको देख पाएंगे, हॉरिजॉन से नीचे नहीं देख सकते। तो सनराइज के बाद हम सन देख पाते हैं, सनसेट के बाद सन नहीं देख पाते। हमें पता है चारों तरफ एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए सनलाइट आ रही है, हम देख सकते हैं ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज सन इज नियर हॉरिजॉन। सनसेट और सनराइज दोनों के टाइम पे मान लीजिए सन यहां से सनराइज कर रहा है तो वो हॉरिजॉन के पास होगा, जब वो हमें रेड दिखाई देता है। जब वो सनसेट होगा तो फिर वो हॉरिजॉन के पास होगा, और हॉरिजॉन के नीचे जाते ही सनसेट हो जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। तो हम देख सकते हैं ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज सन इज नियर हॉरिजॉन, एंड इन दिस केस ऑब्जर्वर के पास तक पहुंचने के लिए लाइट को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है कंपेयर टू अदर पोजीशन ऑफ सन। देखिए
यहां सन होगा तो इधर से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, यहां सन होगा तो यहां से इतना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा, यहां सन होगा तो इतना डिस्टेंस। लेकिन जब सन हॉरिजॉन के पास होता है तब उसको सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है। किसको? सन से आने वाली लाइट को। देखिए यहां पर सनसेट हो रहा है तो यहां भी सनलाइट को सबसे ज्यादा डिस्टेंस करना पड़ रहा है और ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज। तो हम कह सकते हैं ड्यूरिंग सनसेट और सनराइज सन इज नियर horizon due to which the sunlight has to travel more distance compared to other position of sun। तो जब हॉरिजॉन पे सनसेट या सनराइज हो रहा है तो सनलाइट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है। तो जितने भी कलर हैं हम जानते हैं ये सारे के सारे कलर ऑरेंज से लेके वॉयलेट तक ये तो क्या हो जाते हैं? स्कैटर हो जाते हैं। तो लास्ट में ऑब्जर्वर की आई पर कौन सा कलर पहुंचेगा? विच कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस। कौन सा कलर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है? जो सबसे कम स्कैटर हो। हम जानते हैं कि इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/4 पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड कलर की है तो इसके लिए स्कैटरिंग मिनिमम होगी। सो इट कैन ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस कंपेयर टू अदर कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम ड्यू टू विच ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज सन इज सीन एज रेडिश ब्लू। ओके, तो ये बात हो गई। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिनोमेना भी इसी से कुछ मिलता जुलता है। वो फिनोमेना क्या है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट थर्ड फिनोमेना इज डेंजर सिग्नल्स इन रेड कलर। अब आप समझ ही चुके होंगे, सेम वही फंडा है। डेंजर सिग्नल जितने भी होते हैं वो रेड कलर के क्यों होते हैं? क्योंकि हमें पता है रेड कलर कैन ट्रेवल मोर डिस्टेंस कंपेयर टू अदर कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम बिकॉज ऑल अदर कलर्स आर हैविंग वेवलेंथ वेरी लेस ड्यू टू विच देयर स्कैटरिंग इज वेरी हाई। तो बाकी जितने भी कलर हैं उनको अगर हम डेंजर सिग्नल में यूज करेंगे तो वो तो स्कैटर हो जाएंगे, तो उसको ऑब्जर्वर देख नहीं पाएगा। जबकि रेड कलर सबसे कम स्कैटर होता है। तो हम जब किसी एक चीज पे फोकस करके देखते हैं तो हमें वो चीज, वो कलर दिखाई देगा जो कम स्कैटर हो रहा है। आप कहेंगे भैया आप तो कह रहे थे कि जब आसमान में देखते हैं वो नीला दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है, और डेंजर सिग्नल में देखते हैं तो रेड कलर दिखाई देता है। ऐसा क्यों? जब हम आसमान में स्काई में देखते हैं तो फैली हुई चीज देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं तो स्कैटर्ड चीज दिखेगी, ना कि वो जो कम स्कैटर हुई है। चारों तरफ बिखरी हुई चीज दिखाई देगी। लेकिन जब हम किसी एक पर्टिकुलर चीज पे देखते हैं तो बिखरी हुई चीज तो हमें दिखाई नहीं देगी, हमें वो पर्टिकुलर चीज दिखाई देगी। और वो पर्टिकुलर चीज कौन सी दिखाई देगी? जो सबसे कम स्कैटर हुई है, क्योंकि जो सबसे कम स्कैटर होगी वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकती है। तो हम कहेंगे द वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोस्ट ड्यू टू विच इट इज स्कैटर्ड लीस्ट, so it can travel long distance and reaches to the eye of observer. That's why red color is used in danger signals. Now the last one, cloud are seen white. Clouds जो होते हैं वो white color के क्यों होते हैं भैया? तो इसके पीछे रीजन ये है बिकॉज हम जानते हैं white color किन किन कलर से मिलकर बना है? विबग्योर। स्पेक्ट्रम के इन सातों कलर्स को इक्वल अमाउंट में मिलाएंगे तो हमें व्हाइट कलर मिलेगा, और व्हाइट कलर का डिस्पर्जन कराएंगे तो हमें 7 कलर्स मिल जाएंगे। द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लाउड आर वेरी लार्ज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसका मतलब है कि क्लाउड्स के मॉलिक्यूल का साइज बहुत बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से स्कैटरिंग ऑफ लाइट रेले के लॉ के हिसाब से नहीं होगी। यानी कि जैसा कि रेले लॉ कहता है कि अगर साइज लेस देन वेवलेंथ के है तो वॉयलेट की सबसे ज्यादा और रेड की सबसे कम। बट इन द केस ऑफ क्लाउड्स द साइज ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ क्लाउड्स इज वेरी लार्ज, सो स्कैटरिंग ऑफ ऑल कलर्स टेक प्लेस इन इक्वल अमाउंट। यानी कि इस केस में वॉयलेट की ज्यादा या रेड की कम ऐसा नहीं होगा। साइज बहुत बड़ा है तो रेले लॉ अप्लाई नहीं होगा। इस केस में साइज बड़ा है तो सभी कलर्स की स्कैटरिंग इक्वल अमाउंट में होगी, और जब सभी कलर्स इक्वल अमाउंट में स्कैटर करके मिलेंगे तो कौन सा कलर बन जाएगा? व्हाइट कलर बन जाएगा। और इसीलिए क्लाउड्स हमें किस कलर के दिखाई देते हैं? व्हाइट कलर के दिखाई देते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट dispersion of light and scattering of light and phenomena based on scattering. If you have any query, you can ask in chat and doubt option in your mobile app. Till then, thank you very much. Have a nice day.